کہ مذہب اسلام، یہ جو اسلام ہے یہ سسٹم سے چلتا ہے۔ سسٹم کے اندر اگر آپ گڑبڑی پیدا کر دیں گے تو بہت سی چیزوں میں گڑبڑی آپ کو دکھائی دے گی۔ جیسے نماز یہ اپنے مقررہ وقت میں ہے، ہاں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فجر کی نماز اس کے لیے ایک الگ وقت مقرر ہے، ظہر کی نماز اس کے لیے ایک الگ وقت مقرر ہے، عصر کی نماز اس کے لیے ایک الگ وقت مقرر ہے، مغرب کی نماز اس کے لیے ایک الگ وقت مقرر ہے، عشاء کی نماز اس کے لیے ایک الگ وقت مقرر ہے۔ آپ ظہر کے ٹائم میں مغرب کی نمازیں پڑھ لیں گے نہیں چلے گا، یا تو آپ یہ کریں کہ نہیں مولانا فجر کے ٹائم ہم چاروں ٹائم کی نمازیں اور فجر کو ملا کر کے پانچوں ٹائم کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیں گے نہیں چلے گا۔ اسلام ایک بنائے ہوئے اصول پر اسلام چلتا ہی ہے، اصول کے اوپر۔ اور جانتے ہیں ٹائم کے اندر آپ اگر گڑبڑی پیدا کریں گے تو بہت سی چیزوں میں گڑبڑی دکھائی دے گی۔ میں 1 منٹ بتا رہا ہوں، 1 منٹ، اس کے بعد میں اصل موضوع پر آ جاؤں گا۔ غالباً دیکھیے ٹائم پہ اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو کتنی گڑبڑی آئے گی وہ میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں۔ غالباً غزوہ خیبر کے موقع پر جو مال غنیمت حاصل ہوا، مال غنیمت سمجھتے ہیں نا، جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی ہوتی نبی کے زمانے میں اور دشمن مال چھوڑ کے بھاگ جاتے، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو مال غنیمت مسلمان جمع کیے ایک جگہ، تو ایک صحابی کو، غور کر کے سنیے گا بوارے جور والو، سسٹم سے اگر کوئی کام نہیں کریں گے تو کتنی گڑبڑی آئے گی۔ ایک صحابی کو ایک چادر مل گئی، چادر، خوبصورت چادر، تو اس صحابی نے سوچا کہ اس کو میں رکھ لوں۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول نے اعلان کروایا، ایک آدمی کو بھیج دیا کہ جاؤ اناؤنسمنٹ کر دو کہ خیبر سے لوٹا ہوا مال جن کے پاس جتنا ہے وہ نبی کے سامنے لا کر کے جمع کر دے، میں یہاں سے تقسیم کروں گا، سب کو برابر برابر حصہ دے دوں گا، یہاں سے خیبر سے جتنا لوٹا ہوا مال آیا ہے سب یہاں پر جمع کر دے۔ تو اس صحابی نے سوچا کہ میں نبی کے پاس جمع کر دوں گا تو مجھے بھی تو کچھ حصہ ملے گا، تو کیوں نہ میں یہ کروں کہ اس چادر کو میں اپنے ہی پاس رکھ لیتا ہوں، چونکہ مجھے بھی تو حصہ ملے گا۔ اس نے اس چادر کو جمع نہیں کیا، نیت کے اندر گڑبڑی آ گئی، لالچ پیدا ہو گئی، اس نے اس چادر کو جمع نہیں کیا نبی کے پاس۔ نبی کو تو معلوم نہیں، اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم معلوم نہیں تھا۔ ارے اہل حدیث کے اسٹیج سے ہر بات صحیح عقیدے پر ملے گی۔ بریلویوں کے چہرے پہ زبردست تھپڑ پڑ رہی ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم معلوم تھا۔ اس صحابی نے چادر کو جمع نہیں کیا، نبی کو معلوم نہیں کہ اس صحابی کے پاس چادر ہے۔ کتنی دلیلیں لیں گے، کتنی دلیلیں۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس کو خیال آیا کہ نہیں یہ کام تو میں نے غلط کیا، چادر جمع کر دینی چاہیے، وہاں سے حصہ لینا چاہیے تھا مجھ کو، نبی کو انفارمیشن کر دینا چاہیے تھا کہ نہیں یہ چادر مجھ کو خیبر میں ملی ہے، اللہ کے رسول یہ چادر لے لیجئے، یا تو ایک کام کیجئے میرے حصے میں یہ چادر دے دیجئے، اس چادر سے مجھے محبت ہے، بڑی خوبصورت چادر ہے۔ اس نے جمع نہیں کیا، بعد میں جا کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات میں بتانے آیا ہوں۔ کہا بولو کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے مال جو جمع کرنے کے لیے کہا تھا، یہ چادر یہ خیبر سے لوٹا ہوا مال ہے، اس چادر کو لے لیجئے۔ دیکھیں اس نے ٹائم سے جمع نہیں کیا، ٹائم سے اس نے جمع نہیں کیا۔ نبی اکرم نے پوچھا تم نے اعلان سنا تھا؟ کہا ہاں سنا تھا۔ کہا جمع کیوں نہیں کیا تم نے؟ کہا اللہ کے رسول میرے نیت کے اندر یہ گڑبڑی پیدا ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا اب میں اس چادر کے کتنے ٹکڑے کروں اور کس کس کو میں یہ چادر دوں؟ جا، میں تیری یہ چادر نہیں لیتا، رکھ لو۔ اللہ کے رسول نے ٹائم سے، اسلام سسٹم سے چلتا ہے، ٹائم سے اس صحابی نے جمع نہیں کیا، اللہ کے رسول نے اس چادر کو لینے سے انکار کر دیا۔ بعد میں وہی صحابی جنگ کے میدان میں دوسری لڑائی میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، صحابہ مردانہ وار لڑے، کافروں کو جہنم رسید کیا، قتل کر دیا کافروں کو، بعد میں خود بھی شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ارے دیکھو یہ جنتی صحابی کو، یہ بہادر کی طرح لڑ رہا تھا،
की तरह लड़ रहा था। देखो इस जन्नती सहाबी को, अरे इसको तो जन्नत की सर्टिफिकेट मिल गई, ये तो जन्नत में जाएगा। नबी ने कहा चुप, किसके बारे में तुम जन्नत की बात कर रहे हो, किसके बारे में? अरे ये वही सहाबी है जिन्होंने खैबर से लूटा हुआ माल जो आया था, एक चादर इसने रख ली थी, ये चादर जहन्नम की आग बन करके इसके ऊपर लपक रही है, तुम इसके बारे में जन्नत की बात करते हो। देखो सिस्टम से इन्होंने इस काम को नहीं किया, वक्त पर जमा नहीं किया, तो ये गड़बड़ी पैदा हो गई। बहरहाल मेरे भाइयों, अब आइए असल मौजू पर मैं आपको लेके चलता हूँ। हम किस मजहब के फॉलो करने वाले हैं? बोलिए, किस मजहब के? अरे बोलिए ना, कुछ सीखे, कल सिखाया था और माशाअल्लाह आप लोगों का जोशो खरोश मैंने कल देखा। बोलिए किस मजहब के फॉलो करने वाले हैं? इस्लाम। मैंने जो आयत करीमा जो आपके सामने पढ़ी गई है उसमें इस्लाम का भी जिक्र है। देखो पहले अल्लाह की नियामतों का उसमें जिक्र है। पहले कुरान करीम की आयत का तर्जुमा गौर से सुनिए, दिल थाम के बैठिए, सांस रोक के सुनिए। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह अपनी नियामतों को याद दिला रहा है बंदों को। बेशुमार नियामतें हैं हमारे पास, आपके पास। ये जो दोनों हाथ मैं उठा रहा हूं ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। देखो ये हाथ, इसकी कदर कीमत अगर आपको मालूम करना हो तो उस आदमी से पूछो जिसके पास हाथ नहीं है, ये अल्लाह की कितनी बड़ी दी हुई नियामत है। या उस आदमी से पूछो कि हाथ की क्या कीमत है, जिसका एक्सीडेंट के जरिए से हाथ बेकार हो गया हो, उस आदमी से पूछो कि ये हाथ जो अल्लाह की नियामत है कितनी बड़ी नियामत है। सुभान अल्लाह। ये आँख जिससे मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ, आपके पास भी दो आंखें हैं, आप मेरा चेहरा देख रहे हैं। अंधे आदमी से पूछो कि आँख की क्या कीमत है। हम अपनी बीवी को देख पा रहे हैं, बाल बच्चे हमारे कितने खूबसूरत हैं देख पा रहे हैं, लेकिन अंधा आदमी से पूछो नाबीना से कि शादी तो किया है लेकिन उसकी बीवी कितनी खूबसूरत है, वो देख नहीं पाता है। आँख वालों, अल्लाह की नियामतों का कद्र करो। इन आँखों से तुम गंदी फिल्में देखते हो, इन आँखों से तुम लड़कियों को देखते हो, इन आँखों से तुम बुराई के काम को देखते हो। जरा गौर करो, ये अल्लाह की दी हुई कितनी बड़ी नियामत है। उस अंधे आदमी से पूछो बीवी कितनी खूबसूरत है, नहीं बता पाएगा। बेटा है, बेटी है, लेकिन बेटी कितनी खूबसूरत है, बेटा कितना खूबसूरत है, वो देख नहीं पा रहा है। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है। इन तमाम नियामतों में, इन तमाम नियामतों में जो अल्लाह की बड़ी बड़ी नियामत है, उनमें से एक नियामत, बड़ी नियामत जो है वो है इस्लाम। क्या नियामत है? बोलिए। इस्लाम अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है जिसमें हम और आप हैं। इसीलिए आज इसके दुश्मन भी बहुत हैं। जो कीमती चीज होती है उसके चोर डकैत दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं। इस्लाम बहुत बड़ी नियामत है हमारे और आपके पास, और इस नियामत का जिक्र अल्लाह ने कुरान करीम की दूसरी आयत में कुछ इस अंदाज में किया है। वज़कुरू निअमतल्लाह, देखो नियामत की बात आई। वज़कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। मैं स्लोली लेकर के आपको चलूंगा ताकि बात समझे। अल्लाह 1400 साल पहले के नक्शे को खींच करके दिखा रहा है। बुआरी जोल वालों, बोरियो वालों, सुनो, गौर करके सुनो। याद करो अल्लाह की उस नियामत को जब तुम आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे को तुम मर्डर किया करते थे, काटते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। ये जमाने जाहिलियत की तरफ इशारा है। एक एक रोटी और बोटी के लिए उनके अंदर 40-40 साल तक लड़ाइयां चलती थी। उस तरफ अल्लाह ने इशारा किया कि याद करो अल्लाह
की उस नियामत को कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फतें मुहब्बतें पैदा कर दी, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, ये देखो नियामत का जिक्र आया, तो तुम अल्लाह की इस नियामत से यानी मजहब इस्लाम की आमद से या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात से या कुरान करीम के नुज़ूल से, तीन नियामतों का जिक्र है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद, कुरान करीम के नुज़ूल या मजहब इस्लाम की आमद से तुम आपस में भाई भाई बन गए। ये इस्लाम बहुत बड़ी नियामत है, और जो बड़ी नियामत होती है, जो कीमती चीज होती है, उसकी हिफाजत इंसानी फितरत है, उसकी हिफाजत मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। आइए और स्लो बोलूंगा, मैं एक मिसाल एग्जाम्पल ले लीजिए, बाद में तेज स्पीड में बोलूंगा, भागिएगा नहीं। खड़े होकर के सुन रहे हैं, ये कुरान और हदीस की बेअदबी है। बराए करम अगर आप लोग बैठ जाते ना तो बड़ी मेहरबानी होती। मैं आपका छोटा भाई समझ करके मैं आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बैठ जाइए, कुरान और हदीस की बेअदबी हो रही है। इंशाअल्लाह कल कुछ सिखाया था, आज कुछ सिखाऊंगा। अब मैं तेज स्पीड में बोलूंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल देखिए बड़ी चीज की कैसे हिफाजत करते हैं। ये मेरे जेब में एक कलम है, देख रहे हैं। मैं मोबाइल के दुकान में गया, मोबाइल के अंदर कुछ गड़बड़ी आ गई थी, मोबाइल के दुकान में गया, दुकानदार से कहा कि देखो मेरे मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है। गया मैं दुकान पे, वो देखा, मोबाइल देख करके सही करके मोबाइल दे दिया। मैं घर में आया, देखिए कीमती चीज की मिसाल। घर में आने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि अब दुकान का हिसाबो किताब करेंगे, दुकान का हिसाबो किताब आप करेंगे। ऑफिस में जाते हैं यही 10 रुपये का पेन लेकर के, कलम लेकर के, लेकिन जैसे ही आप डायरी खोल के सामने कुछ लिखने के लिए जा रहे हैं, जेब में हाथ ऐसे डाल रहे हैं, पता चला अरे फुला मोबाइल के दुकानदार के पास मैं गया था, अरे वहां मोबाइल निकाला था, कलम तो वहीं गिर गया मेरा। ये देखिए 10 रुपया कीमत है, लेकिन आप दुकान में छोड़ के आए हैं, आपके घर से 2 मिनट का रास्ता है दुकान, 2 मिनट पैदल चलेंगे आप दुकान पहुंच जाएंगे। तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं 2 मिनट टाइम लगेगा, जाऊंगा कलम लेके चले आऊंगा, अगरचे 10 रुपया कीमत है, इस कलम की कीमत 10 रुपये है अगरचे, लेकिन ये बहुत कीमती चीज है। आप घर से खरामा खरामा निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मोबाइल के दुकान में। क्यों? आप कलम छोड़ करके आए हैं वहां, आप जा रहे हैं, इतने में आप मेन गेट में, आपके घर के मेन गेट से निकले हैं, दुकान की तरफ जा रहे हैं, 2 मिनट टाइम लगेगा, इतने में आपका बड़ा बेटा दौड़ करके आ रहा है और कह रहा अप्पू 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 रुके रुके रुके। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? काबू वो जो कुर्बानी का खस्सी था, कुर्बानी का बकरा था, वो कुएं में गिर गया। बारी जोर वालों, अब गौर से जवाब दो, 10 रुपये का पेन लेने जाएंगे या कुर्बानी का बकरा जो कुएं में गिर गया है उसको उठाने जाएंगे? बोलो बोलो। अरे उर्दू समझ में नहीं आ रही है? उर्दू समझ में आ रही है? हाँ कि नहीं? बोलिए ना। हाँ, उर्दू तो समझ में आ रही है। क्या करेंगे आप? उस बकरे को उठाने जाएंगे या 10 रुपये का पेन लेने जाएंगे दुकान में? बकरे को उठाएंगे। क्यों? कलम से ज्यादा कीमती चीज है बकरा। कलम की कीमत है 10 रुपये और बकरे की कीमत है 8,000, 10,000। आप कहेंगे जाओ 10 रुपये का कलम जा रहा है, जाने दो, फिर मैं खरीद के ले लूंगा, लेकिन पहले उस बकरे को, कुर्बानी का बकरा जो कुआं के अंदर गिर गया है, उसको पहले मैं उठाऊंगा। क्यों? ये कीमती चीज है, कीमती चीज है, और इसकी आप हिफाजत करते हैं। और एक एग्जाम्पल 1 मिनट में दे दूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। आपके घर में चाकू है ना, चाकू समझते हैं ना, छुरी चाकू, उससे आप सब्जी काटते हैं, बैगन काटते हैं, आलू काटते हैं, टमाटर काटते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चाकू कभी कभी आप किचन में रखते हैं कि नहीं? कभी कभी वही चाकू देखो बरामदे में पड़ा हुआ है, कभी कभी वही चाकू देखिए टेबल के ऊपर रखा हुआ, जरूरत पड़ी सब्जी काटने के लिए, कहे बाबू है चाकू कहाँ है? अम्मी देख लो वो किचन में है चाकू।
देखो जगह कहाँ है चाकू? किचन में, कभी कभी टेबल के ऊपर, कभी कभी बरामदे में, लेकिन उसकी आप उतनी हिफाजत नहीं कर रहे हैं चाकू की। क्यों? कीमती चीज है भाई, चाकू जरूरत की चीज है, आप उसको काम में लाते हैं लेकिन हिफाजत नहीं करते हैं। वहीं पर आपके घर में गोल्ड समझते हैं ना, सोना, सोने की एक बिस्किट है, छोटी ही बिस्किट है सोने की, उसको आप किचन में नहीं रखते हैं, किचन में नहीं रखते हैं आप उसको कपड़े से बांध करके बॉक्स में, संदूक में आप उसको अलमारी के अंदर छुपा करके रखते हैं, उसको आप किचन में नहीं रखते हैं, उसको आप बरामदे में फेंक के नहीं रखते हैं। क्यों? अगर आप किचन में रखेंगे कोई चुरा के लेके भाग जाएगा। क्यों? चाकू से ज्यादा कीमती चीज है गोल्ड, सोना। दिया जूरी वालों सुनो, बुआरी जोर वालों सुनो, बोरियो वालों सुनो, अल्लाह ने सोने की तरह एक कीमती नियामत हमको और आपको अल्लाह ने दिया है, इस्लाम, कीमती नियामत दिया है। अब हम इस्लाम की हिफाजत कैसे करेंगे? कैसे इस्लाम की हिफाजत करेंगे? आज वो कंडीशन भी है इस्लाम को मिटाने के लिए, मुसलमानों को मिटाने के लिए। कभी वक्फ तरमीमी बिल के शक्ल में कानून लाया जाता है, तो कभी एनआरसी की शक्ल में कानून लाया जाता है। देखिए इस्लाम की कीमत क्या है, इस्लाम की कीमत, ये बड़ी जो नियामत है, हम इसकी हिफाजत कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आइए कैसे करेंगे, सहाबा से सीखिए इस्लाम की हिफाजत। इस्लाम की हिफाजत सहाबाए किराम कैसे करते थे, आइए सीखिए। एक मंजर 5 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, गाड़ी तेज स्पीड में चलेगी। इस्लाम की ये जो बड़ी नियामत है, इसकी हिफाजत सहाबाए किराम ने कैसे की है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। एक मंजर, गज़वे उहुद, बदर की लड़ाई हुई, उसके बाद उहुद की लड़ाई। गज़वे उहुद में गौर से सुनो, एक सहाबी का नाम है हंदला, गौर करके सुनिए, हंदला सहाबी का नाम है। इनकी पहली शादी हुई है, शादी नई लवेली दुल्हन घर में मौजूद है। दोनों मियाँ बीवी एक रूम में, एक कमरे में बंद है। हाँ, ऐ पुआरी जोर वालों, उस रात को हम सुहाग रात के नाम से जानते हैं, उस रात को हम शबे सुफाफ के नाम से जानते हैं, और हर नौजवान लड़के और लड़की को बड़ी शिद्दत से उस रात का इंतजार होता है। दोनों मियाँ बीवी घर के अंदर हैं, प्यारो मोहब्बत भरी गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए कहाँ ले जा रहा हूं मैं आपको, कहाँ, गौर करके सुनिएगा, कहाँ ले जा रहा हूं। दोनों प्यारो मोहब्बत भरी बातें कर रहे हैं, और उस रात में मियाँ बीवी, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो कुछ होता है सब हो जाता है, जिस्मानी ताल्लुकात भी होता है। इतने में नबी के एक अनाउंसमेंट, एक ऐलान करने वाला, दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, जल्दी घर से निकलो, चलो चलो जल्दी घर से निकलो, दुश्मनों से लड़ना है, जंग करना है दुश्मनों से, चलो जल्दी घर से निकलो। अब देखो ये हंदला घर से निकलते हैं। देखिए इनकी नजर में इस्लाम बड़ी नियामत थी, हंदला की नजर में इस्लाम कीमती नियामत थी। बुआरी जोर वालों सुनो, कितनी बड़ी नियामत थी इनकी नजर में इस्लाम। घर से निकले, बाथरूम में गए नहाने के लिए, तौलिया लेके गए नहाने के लिए बाथरूम में, पानी भी भर चुके हैं डोल में। इतने में फिर आवाज आ रही है, फिर ऐलान करने वाला ऐलान दोबारा ऐलान कर रहा है, ऐ नबी के सहाबियों, ऐ नबी के मानने वालों, ये आखिरी वार्निंग दी जा रही है, ये आखिरी ऐलान है। अब इस ऐलान के बाद
बाद जो अपने घर में बैठा रहेगा, दुश्मनों से लड़ने लगी जाएगा, उसको मुनाफिक माना जाएगा, मुनाफिक माना जाएगा। जैसे ही सुना कि ये आखिरी वार्निंग है, गुस्ल का इरादा तर्क कर दिया, छोड़ दिया, गुस्ल का इरादा तर्क कर दिया, तौलिया रख दिए, गमछा वहीं पे रख दिए, निकल गए, घोड़े पे चढ़ गए। सुनो नौजवानों, तुम्हारी नजर में मोबाइल ज्यादा कीमती चीज है। देखो सहाबा से इनकी नजर में इस्लाम बड़ी कीमती चीज थी। घोड़े पे चढ़ गए, नई नवेली बीबी दौड़ करके आई, कहने लगी, ऐ मेरे हस्बैंड, ऐ मेरे शौहर, कहाँ जा रहे हैं? कहा तुमने सुना नहीं, नबी के सहाबी ने ऐलान करके गया कि ये आखिरी वार्निंग है, इस वार्निंग के बाद घर में कोई रुका ना रहे, मैं जा रहा हूं जंग के मैदान में। कहा ऐ मेरे हस्बैंड, मैं आपको रोकने नहीं आई हूं। अल्लाह अकबर, बुआरी जोड़ के मेरी माँ, बहनों, बोरियों की मेरी माँ, बहनों सुनो, बीवी हो तो ऐसी, खातून हो तो ऐसी, क्या जवाब दे रही है? ऐ मेरे सरताज, मैं आपको रोकने नहीं आई हूं कि जंग के मैदान में मत जाइए, आप मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए हैं, दोनों की पहली रात थी शादी के बाद, आप जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए हैं, आप चुंबी हैं, नापाक है, पहले आप कम से कम गुस्ल तो कर लीजिए, नहा तो लीजिए। कहा बीवी, नहाने में 5 मिनट भी लग सकता है, नहाने में 10 मिनट भी लग सकता है। ऐ मेरी बीवी, कहीं ऐसा ना हो कि इस 5 मिनट के अंदर, इस 10 मिनट के अंदर नबी का कोई सहाबी कत्ल कर दिया जाए, नबी का कोई सहाबी मार डाला जाए। लिहाजा ऐ मेरी बीवी, मैं बगैर गुस्ल के मैदान जंग में निकल रहा हूँ, इसलिए कि जान से ज्यादा कीमती चीज मजहब इस्लाम। देख रहे हैं, सहाबा की नजर में जान से ज्यादा कीमती नियामत और चीज इनकी नजर में है इस्लाम। निकल गए, लेकिन जाते जाते ये कह के भी गए, मेरी बीवी, जंग के मैदान में जा रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है शहीद कर दिया जाऊं, मार डाला जाऊं, कत्ल कर दिया जाऊं, कोई गारंटी नहीं है। ऐ मेरी बीवी, अगर मैं शहीद कर दिया गया तो तुम इद्दत गुजारने के बाद अपनी जवानी को बर्बाद न करना, अपनी जवानी को तुम बर्बाद न करना। इद्दत गुजारने के बाद 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना, दूसरी शादी कर लेना। ये कह करके निकल गए। हाय मेरे भाइयों, ये नौजवान बीवी देख रही है, मेरा शौहर ऐसे काम के लिए निकला जहां पर कोई गारंटी नहीं है, वो बाहयात भी आ सकते हैं और शहीद भी हो जा सकते हैं जंग के मैदान में। ऐ बुआरी छोर वालों सुनो, गौर करके सुनो, मैदान जंग में पहुंच गए और पहुंचने के बाद मैदान जंग में काफिरों से, मुशरिकों से, दुश्मनों से मर्दाना वार लड़े। कई काफिरों को उन्होंने जहन्नम रसीद भी कर दिया और खुद भी शहीद हो गए। मैंने कहा ना, कोई गारंटी नहीं। देखो, इनकी नजर में इस्लाम बड़ी कीमती नियामत थी, शहीद हो गए। जब शहीद हो गए, अब सुनिए, हमदला की बीवी को ये खबर पहुंच गई है कि मेरा शौहर, एक रात का शौहर मेरा इंतकाल कर गया, शहीद कर दिया गया, जंग के मैदान में शहीद हो गया। अब इनको मालूम है, ऐ बुआरी जोर वालों सुनो, जंग के मैदान में जो कत्ल कर दिया जाता है उसको गुस्ल नहीं दिया जाता है। गौर से सुनो, गुस्ल नहीं दिया जाता है, कफन नहीं पहनाया जाता है, उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाती है। अब इनकी बीवी को मालूम है कि मेरे शौहर को तो गुस्ल नहीं दिया जाएगा। वो दौड़ती हुई आती है और कहती है, रुको रुको, मैं नबी से जाकर के मिलूंगी। अल्लाह के रसूल ने देखा, हमदला की बीवी तुम यहाँ आ गई हो? कहा अल्लाह के रसूल, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। कहा क्या बोलो? कहा मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिएगा। नबी अकरम ने फरमाया, तुम्हें मसला मालूम नहीं है कि शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता है? कहा अल्लाह के रसूल,
मैं खुल के बता रही हूँ, खुल के नहीं बताऊंगी तो आप समझेंगे भी नहीं। आप चूंकि यहाँ भी अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब नहीं थे, देखिए कि अल्लाह के रसूल मैं खुल के बता रही हूँ, हम दोनों की पहली रात थी, एक रात के ये मेरे शौहर थे, ये मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम हुआ है और ये जंग के मैदान में आ गए हैं। अल्लाह के रसूल गुस्ल दिलवा दीजिए। नबी अकरम की निगाहें आसमान की तरफ उठी, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ हंजला की बीवी, तेरे शौहर को आप गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, तेरे शौहर को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। कहिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। ये आज से गसीलुल मलाइका है, मलाइका। अरे जमा का सेगा इस्तेमाल किया, एक फरिश्ते ने नहीं, कितने फरिश्ते ने उनको गुस्ल दिया है कोई मालूम नहीं। आज से ये तुम्हारा शौहर गसीलुल मलाइका, गसीलुल मलाइका। इस्लाम के खातिर ये बड़ी नियामत है, कीमती नियामत है, इसने अपनी जान भी दे दी। और जानते हैं वहां पर सिर्फ उहुद की लड़ाई में एक सहाबी नहीं बल्कि एक दो करके अगर गिना जाए तो 70 सहाबी शहीद हो गए थे उहुद की लड़ाई में। क्यों हुए थे मैं उधर नहीं जाऊंगा। लड़ाई खत्म हो गई, डेड बॉडियां गिनी जा रही है, यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है, वहां पर एक लाश है, वहां पर एक लाश पड़ी हुई है। नबी अकरम ने हुक्म दिया, ऐ लोगों, जितने सहाबाए किराम शहीद हुए हैं सबकी डेड बॉडियों को ला करके एक एक जगह जमा करो। सहाबाए किराम डेड बॉडियां लाने लगे और एक जगह डेड बॉडियों को जमा करने लगे। और सहाबाए किराम ने जब गिना तो देखा 69 लाशें, 69 डेड बॉडियां हैं, एक डेड बॉडी गायब है। 70 शहीद हुए थे ना, एक डेड बॉडी गायब है। नबी अकरम ने कहा कि तलाश करो। एक साहबी ने बताया, अल्लाह के रसूल, मैंने हजरत हंजला की डेड बॉडी को देखा कि वहां पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि उनके सर से पानी का कतरा टपक रहा है। नबी अकरम ने फरमाया, देखो देखो, इनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, इनका मामला ये था, इनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। अब सुनो मेरे भाइयों, 70 लाशें जमा हो गई। ऐ पौड़ियों वालों तुम भी सुनो, ऐ पौड़ी चोर वालों तुम भी सुनो, ऐ अरीब करीब से आने वालों तुम भी सुनो, गौर करो। हमारे यहाँ की तरह मिट्टी नहीं कि आप 70 कब्रें खरी खोद लेंगे। ये मक्का और अरब की ये पथरीली जमीन, एक कब्र खोदने में पसीना निकल जाएगा आपका, एक कब्र खोदने में। नबी के जमाने में ये कोई मशीन नहीं, ये जेसीबी मशीन नहीं कि मशीन के जरिए से कब्र खोदी जाए। नबी के जमाने में ये मशीन नहीं। नबी अकरम ने कहा कि ये 70 कब्रें खोदना बड़ा मुश्किल काम है, लिहाजा कुछ कब्रें खोदो, कुछ कब्रें खोद करके तैयार करवाई अल्लाह के रसूल। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, ऐ लोगों, एक एक कब्र में 2-2, 3-3 डेड बॉडियां रखो। ये इस्लाम से मोहब्बत करने वाले नौजवानों, तुम 24 घंटे में जितना मोबाइल यूज करते हो, तुम्हारी नजरों में मोबाइल कीमती चीज है, लेकिन सहाबा की नजरों में इस्लाम बड़ी नियामत है, इस्लाम कीमती चीज थी उनके नजरों में। 70 सहाबा किराम शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल ने कुछ कब्रें खुदवाई, 70 कब्रें नहीं। उनके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा, एक काम करो, एक एक कब्र के अंदर 2-2, 3-3 डेड बॉडियां रखो, एक एक कब्र में 2-2, 3-3 लाशें रखो। अल्लाह के रसूल पूछते जाते थे, यहाँ जो जितनी लाशें पड़ी हुई हैं, इनमें कुरान किसको ज्यादा याद है? कुरान किसको ज्यादा याद है? सहाबाए किराम कहते थे, अल्लाह के रसूल, इनको ज्यादा कुरान याद है। अल्लाह के रसूल कहते थे, पहले इनको कब्र में रखो। उसके बाद किसको कुरान ज्यादा याद है? सहाबाए किराम कहते थे, अल्लाह के रसूल, इनको ज्यादा कुरान याद है। कहते थे, उनके बाद इनको कब्र में रखो। उसके बाद किनको ज्यादा कुरान याद है? सहाबाए किराम कहते थे, इनको ज्यादा कुरान याद है। अल्लाह के रसूल कहते थे, इनको रखो। ऐसे करते करते एक एक कब्र में 2-2, 3-3 डेड बॉडियां अल्लाह के रसूल रखवाए। मेरे भाइयों, इनकी नजर में इस्लाम
بڑی نعمت تھی، اسلام قیمتی نعمت تھی۔ اے نوجوانوں، اے اسلام کے اوپر مر مٹنے والوں، آج ہماری نظر میں اگر اسلام قیمتی چیز ہے، دیکھو اسلام کے اوپر آج دشمنان اسلام انگلی اٹھا رہے ہیں۔